Yes, in the previous class, what we was discussing? Tell me students, in the previous class, what we discussed? बोलो बेटा. Ma'am, ma'am, we Yes. have done alkaline. Alkaline? Alkaline. Yes, Alkanes. Alkanes we yes, have ma'am. done. Okay, now let me just review, do the recapitulation, then we will start further. Now देखो, in the previous class, what we was doing, we was discussing about the hydrocarbon or you in the hydrocarbon. Mute yourself, beta. We was discussing the hydrocarbons. Hydrocarbons, I told you, it means carbon and hydrogen. They are only present, then they are called as the hydrocarbons. Now there are the compounds which can have the other compound than the carbon and hydrogen also. But whenever there is the another compound present other than the carbon and hydrogen, they are not going to called as the hydrocarbons. Okay. Now after this, I told you that we have the hydrocarbons are classified into the two forms, that is your saturated and unsaturated. Now when we talk about the saturated, it means alkanes, and when you talk about the alkenes, unsaturated, it means alkenes and alkynes. इतना सबको clear है? Everyone is clear with this? Yes or no? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. when we talk about the alkenes, I told you it means saturated, and these two are the unsaturated and unsaturated. Saturated का मतलब there is going to have the single bond. Alkenes का मतलब double bond, and triple bond. Whenever you are going to have any alkane, उसका general formula will be CnH2n plus 2. GF का मतलब है जनरल फॉर्मूला. अगर एल्कीन्स हैं तो जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, और एल्काइंस हैं तो इट इज गोइंग टू बी CnH2n minus 2. Up to here, any doubt? Anyone having any doubt? No, ma'am. Okay. No. Now, whenever you are going to have the alkenes, your suffix comes out to be "ane". Alkenes के केस में your suffix is "ene", and alkynes के केस में your suffix is "ine". Then, in the case of the alkanes, you have C12, as many as you can write. मतलब कि C12 मैंने डैश डैश इसलिए किया है कि आपका जो सबसे छोटा एल्केन होगा, इट इज गोइंग टू हैव दी वन कार्बन एटम, और जब तक आप बना सकते हो 20, 25, 30, खूब सारे इसके कार्बन एटम्स हो सकते हैं, बट लोएस्ट विल बी योर C1. In the case of the alkynes and alkenes, in the both cases you will have from the C2 and as many as you can, and over here also C2 and so on.
Means in the case of the alkenes and alkynes you cannot have the single carbon atom. ये भी क्लियर है आपको? Yes or no? Yes, ma'am. Then in the class 10th, in the class 10th, you should know, or I should say you should learn by heart from C1 to C10. यहाँ तक सबके जनरल formulas and names you have to learn by heart. Now let's start moving ahead. When I am having C1, so what will be its general formula? क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला? NCH4. Yes, Methane. it will be CH4. अब sorry, इससे पहले एक चीज I want to tell you. C1, C2, C3, C4, C5. देखो अब हम एक वर्ड बोलते हैं विच इज कॉल्ड एज द वर्ड रूट. वर्ड रूट का मतलब होता है आगे वाला वर्ड. वेदर द गिवन कंपाउंड इज योर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, this word root is going to be same in all the three cases. ये बात समझ में आती है सबको what I have said? भारती? Yes. Yes, ma'am. No, ma'am. Anyone who can explain this thing what I have told? मैम अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर है तो उनके नेम्स भी डिफर होंगे, उनके वर्ड रूट्स नेम वगैरह. No. I told you. वो तो आपने ठीक बोला बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. आई एम सेइंग यू कि अगर मेरा से सपोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 2, ओके, वर्ड रूट जो है वो सेम होगा, ओनली डिफरेंस विल कम इन द योर सफिक्स. अब बात समझ में आई? Ma'am, please. Yes, No, ma'am. ma'am. आई एम सेइंग, इसको कैसे बताऊं मैं तुम्हें? हाँ देखो मैं ये कह रही हूँ, हमारे पास वर्ड रूट होते हैं. वर्ड रूट जो है वो सबके सेम होते हैं, चाहे आपका एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है. सिर्फ डिफरेंस आता है सफिक्स के अंदर. नाउ इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. नाउ लेट्स लुक व्हाट आर द वर्ड रूट्स. अगर C1 है, मैम जी बेटा, यस बोलो बेटा. so I cannot attend the class for long. ओके बेटा. Yes, sir, let me please know, sir. I could not attend the class for long. ओके बेटा, ओके, नो इश्यूज. No, ma'am, please mark my attendance. Okay, in starting I have taken your attendance beta, and afterwards make sure that you look the recording, okay, and leave a message in a chat box also. Clear? Now continuing with this, C2 अगर होगा तो आपका word root is eth. C3 होगा तो it will be prop. It is but, pent, hex, hept, oct,
or deck. Okay, these are going to be same in all the cases. Now let's look the suffix alkanes, alkenes, alkynes. अब alkanes में ये क्या हो जाएगा? Methane. And in the previous class we have done your alkenes and alkynes cannot exist as the one carbon atom. Okay. C2 इथेन, यहां पे इसका नाम हो जाएगा इथीन एंड इथाइन. अब यहां पे हु इज गोइंग टू टेल मी? Propane, मैम Propane. Propane. प्रोपेन propene, Propene. propine, Or propane. Propine. Over here ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन Butane. 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 Pentane. Pentine. Pentane. okay, now it's easy, very easy. यस मैम Yes. अब यस मैम it means what you have to do, आपको क्या याद करना है? You have to learn only and only the word root. उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए in the case of alkenes you have to use a ane, alkenes में ene और alkynes में ine. This much only. So rest you are going to do yourself. yes, ma'am. Sure. यस ओके फाइन. अब देखो ये तो आई हैव शोन यू कि मैंने आपको सिर्फ इनके नाम बता दिए हैं. नाउ इफ द कंडीशन कम्स दैट लाइक लेट्स कम टू अवर एनसीईआरटी like this, they have shown what they have written their formulas, this CH4. Now this type of the formula is called as the condensed chain formula, and this type of formula is called as the open chain formula. This much is clear? Condensed formula and open chain formula. This much is clear to everyone? What is condensed? यस मैम Like Yes, ma'am. से सपोज हमें CH4 बनाना है, तो ये फॉर्मूला क्या है? एकदम बिचा बिचा सा क्लोज फॉर्मूला हो गया, तो इसको आप बोलोगे कंडेंस्ड फॉर्मूला. अब इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो it is going to called as a open chain formula. Now say suppose let's do for the butane. तो ब्यूटेन में क्या हो जाएगा? ब्यूटेन का बताओ, C4 के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा? एनीवन? 10. H10. H10. अब देखो इसको हम बनाते हैं एल्केन. CH3, CH2, CH2, CH3. ओके, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन द बुक टू बुक दैट हाउ दे हैव रिप्रेजेंटेड यू. like this. Now all these are the butane only. ये तीनों के तीनों ब्यूटेन्स ही हैं. Now जो ये वाले आपके स्ट्रक्चर्स थे, दे आर व्हाट? ये चेन स्ट्रक्चर्स थे, स्ट्रेट चेन थी, है ना? दे ऑल वाज हैविंग द स्ट्रेट चेन. यस और नो? Yes, ma'am. अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका नाम क्या होगा? Vertical chain.
वर्टिकल चेन नहीं, ये भी ब्यूटेन ही कहलाएगा। चाहे मैं इसको ऐसे बनाऊं, आपका क्या बोलते हो आप, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे बनाऊं मैं विद अ सिंगल बॉन्ड, इट विल बी कॉल्ड एज अ ब्यूटेन ओनली। ओके, नाउ द थिंग कम्स कि आप यू कैन शो देम इन द साइक्लिक फॉर्म ऑल्सो। साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, दैट दीज स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू अ रिंग फॉर्मेशन। लाइक प्रोपेन से वी स्टार्ट द रिंग फॉर्मेशन। अब प्रोपेन के पास कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 3 कार्बन एटम्स होते हैं। तो व्हाट यू डू, अगर आपके पास मान लो एग्जाम में आता है दैट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोप्रोपेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ आपका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन कैसे होगा, दिस विल बी अ साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जितने भी टर्मिनल्स होंगे, टर्मिनल्स रिप्रेजेंट द कार्बन एटम। गॉट इट, टर्मिनल्स रिप्रेजेंट कार्बन एटम। और अगर एग्जाम में आता है प्रोपेन, तो आप प्रोपेन कैसे लिखोगे, CH3 CH2 CH3। समझ में आया ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. चलो Yes, फिर ma'am. मुझे जरा फटाफट से, ब्यूटेन का मतलब C4 हो गया, जरा मुझे जल्दी से बताओ साइक्लोब्यूटेन क्या हो जाएगा फिर। Square. यस, मैम स्क्वायर। Yes, ma'am. दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लोब्यूटेन। गॉट इट? नाउ हमारे पास एक आ जाता है यहाँ पे हेक्सेन। अब हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन एटम्स। अगर मैं इसको बोलती हूँ साइक्लोहेक्सेन, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेक्सागन। Ma'am, hexagon. Ma'am, yes, hexagon. this will be your cyclohexane. ओके, अब एक आपका आ इस जाता है, डायग्राम में हाइड्रोजन के बॉन्ड शो नहीं करने कार्बन के नहीं साथ में। नहीं शो करने, जैसे मैं आपको बताती हूँ, इफ यू Ma'am, वांट टू, मीथेन का problem. देखो मैं बताती हूँ, सुनो ध्यान से। इफ यू वांट टू शो, से सपोज दैट यू वांट टू शो, या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, विथ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द हेक्सेन। आपका ये कार्बन एटम हो गए, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस। अब Yes, ma'am. like you told me कि मैम we want to show the hydrogen atoms. Okay, अब मैं इसको नंबर 1 कार्बन ले रही हूँ मेरा, ठीक है। अब ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये है, यस, दिस, Yes, my ma'am. my cursor is visible to everyone ना, एक बॉन्ड ये Yes, हो गया Yes, ma'am. एंड एक बॉन्ड ये हो गया, तो टोटल कितने बॉन्ड्स आपको शो हो रहे हैं अभी, 2. 2। अब अगर आपको इस 2 के अलावा शो करना है तो हाउ यू हैव टू डू, आप ऐसे 2 बनाओगे एंड यू विल राइट डाउन द हाइड्रोजन। इसका शो करना है, व्हाई, बिकॉज योर कार्बन इज व्हाट, इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। अब आप जितना, जहां जहां मैंने हाइड्रोजन लिखा है, आप काउंट करके देखो, इन चारों कार्बन के पास 4-4 हाइड्रोजन हो रहे हैं, यस और नो? Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. अब एक तरीका तो ये होता है शो करने का बेटा, एक तरीका होता है यू राइट डाउन लाइक दिस, आप ऐसे लिख दो। Ma'am, as in hexane.
H is 14. So according to you, it will be only 12. कैसे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये वाले भी तो काउंट करेगा बच्चे। विदित लिसनिंग, मैंने ये हाइड्रोजन शो करे आपको और फिर ये भी तो है। देखो आप समझे नहीं बात को, उनसे मेरी बात सुनो। ये वाला कार्बन, ये 1 नंबर, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूं। दिस कार्बन 1 और कार्बन 2 हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है तो आप इसको भी तो काउंट करोगे। यहाँ पे इट मीन्स व्हाट? देयर इज हाइड्रोजन, हियर इज हाइड्रोजन, हियर इज हाइड्रोजन, हियर इज हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तभी तो आपकी कार्बन की वैलेंसी मतलब कार्बन की वैलेंसी टेट्रावेलेंट होगी। 2 ये और 1 ये, 1 ये। मैम समझ में नहीं आया। ओके मैम। मैं बताती हूँ। समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? देखो अब साइक्लोब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं, चलो हम। मैम थोड़ा सा बड़ा बनाना इस बार। बड़ा बनाओ? ओके फाइन, यस बड़ा मैम। बड़ा बनाती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। साइक्लोब्यूटेन के एग्जांपल से समझे? यस मैम। यस मैम। ये हो गया। this is the carbon atom. Yes. यस मैम। यस मैम। अब इसको से Yes. सपोज हमें बनाना है, वेट अ मिनट, आपको हाइड्रोजन शो करने हैं। तो देखो एक तो तरीका है कि आपने H2 लिख दिया यहाँ पे, isn't it? एक तरीका क्या होता है दैट एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, isn't it? अब कितने बचे? 2 और बचे। Got it? Similarly, over here, इसको भी मैं तुम्हें ओपन करके दिखा देती हूँ। अब काउंट करो बच्चे। एट। मैम 8 हो गए। हो गए? यस मैम। Got the point now? यस मैम। Sure? यस मैम मैम बॉन्ड 10 होंगे ना? क्या बेटा, एक बार फिर से बोलो। What you said? मैम मैम ब्यूटेन में तो मैम 10 होंगे ना हाइड्रोजन? अरे बेटा ये आपके 8 हो गए, फिर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये भी तो बॉन्ड्स हैं भाई। आप ऐसे ड्रॉ करते हो, ऐसे समझो पहले। बताओ मुझे काउंट करके कितने हाइड्रोजन्स हैं? मैम 10। 10 है ना? अब जब आप इसको साइक्लिक फॉर्म में करते हो तो व्हाट हैपेंस कि उसके बॉन्ड्स जो होते हैं दे गेट कन्वर्ट इनटू अ शेयरिंग। तो जो आप शो करते हो फॉर द शोइंग, ये वाले तो आपके शेयर हो गए, ये वाला बॉन्ड शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया। तो अब आपके पास कितने बचे? 2 2 4 5 6 7 8। जैसे अगर आपका पेंटेन होता है तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है मुझे ये बताओ पहले। C5 मैम H12। C5H12 है ना?
C5H12 होता है। अब जब आप इसको साइक्लिक फॉर्म में करोगे, ऐसे सॉरी साइक्लिक फॉर्म में जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा कि हर एक कार्बन एटम कैन बी टेट्रावेलेंट ओनली। तो जो इसके 2 हाइड्रोजन्स हैं वो वाइल कंडेंसिंग द रिंग, वाइल द रिंग फॉर्मेशन, वो फ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये C5H10 आएगा। करके देखो जरा, इसे आ रहा है 10 या नहीं आ रहा, अपनी कॉपी में करके मैम देखो। 10 ही Yes, आ ma'am. रहा है, 10 ही आ रहा है। 10 ही है। गॉट इट योर पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? यस Yes, ma'am. ओके फाइन। अब क्या होता है बेटा, व्हाट हैपेंस कि अब आपको मैंने एक होमवर्क तो दे दिया कि C1 से लेके C10 तक आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन विद जनरल फॉर्मूला यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके मैम अगर हमारे एग्जाम्स में साइक्लोपेंटीन का आ गया तो मैम वो हम लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे साइक्लोपेंटीन या पेंटेन में। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ मैं बेटा, जो आपके 10th क्लास में जो है ना वो आपके एल्केन्स ही है बस। अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। से सपोज आपके पास एग्जाम में जैसे आपने कहा कि मैम हमारे पास ये मैंने आपको क्या बताया, इट इज योर साइक्लोपेंटेन। अब हम जब भी आपको याद होगा हम एन कब बोलते हैं, व्हेन यू आर हैविंग द सिंगल बॉन्ड, इजंट इट? अगर आपके एग्जाम में आता है, आएगा नहीं, इफ एनीवन आस्क यू साइक्लोपेंटीन, तो पेंटीन का मतलब कितने बॉन्ड्स होते हैं? Ma'am, double bond. डबल डबल बॉन्ड। मैम डबल बॉन्ड। तो आपका साइक्लोपेंटीन जो आएगा ना बच्चे, वो कहीं ना कहीं अंदर एक लाइन और डली हुई होगी ऐसे। इट विल बी कॉल्ड एज अ साइक्लोपेंटीन। क्यों? क्योंकि पेंटीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। गॉट इट? जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, इसका नाम क्या बोला था आप लोगों ने? व्हाट इज इट्स नेम बेटा? Hexagon. हेक्सेन। Hexagon. हाँ, हेक्सेन नहीं, हेक्सेन नहीं, क्या बोलोगे? हेक्सागन, हेक्सागन। नो नो, जब भी साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, Cytohexane. साइक्लोहेक्सेन। अब ये साइक्लोहेक्सेन है। अब मैंने ये एक और डायग्राम बनाया है, ये और ये सेम है या अलग है? वो अलग है। अलग है। अलग है मैम, अलग। मैम इसमें डबल बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड है। अब इसमें जो एक चीज अब ध्यान देना बेटा, इसमें जो डबल बॉन्ड्स है ना वो कितने डबल बॉन्ड्स हैं? मैम 3। 3। जब भी आपकी कोई भी रिंग आती है जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो उसको हम एक कॉमन नेम देते हैं बेंजीन। ओके, गॉट इट? ओके मैम। इट इज Yes, कॉल्ड ma'am. एज अ Yes, ma'am. बेंजीन। 3 डबल बॉन्ड अगर होते हैं तो। और डू नॉट गेट कंफ्यूज, जैसे आप लोग नेट सर्च करो या कोई और रेफरेंस बुक देखो, बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड्स ऐसे बनाए हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ओके, देखने में ये और ये सेम लग रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो मेरे बॉन्ड्स की पोजीशन डिफरेंट है। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, बट दे आर सेम। आपका ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर तीनों ही बेंजीन है। ये जो मैंने अंदर ये जो सर्कल बनाया है ना, ये जो गोला बनाया है, लाइक अगर आपसे कभी कोई पूछे तो इस गोले का मतलब क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड्स हैं दे आर मूवेबल, लाइक दिस डैश से बनाते हैं, दे आर मूवेबल। मूवेबल का मतलब क्या हो गया कि अगर आप देखो तो मैंने ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, और मैंने जो दूसरा डायग्राम बनाया उसमें मैंने ऐसे बना दिया। तो ये क्या हो गए, इनकी पोजीशंस चेंज हो रही हैं। तो अब ये आप अलग अलग डायग्राम की बजाय हम क्या करते हैं, रिंग के अंदर एक सर्कल बना देते हैं। एंड इट अकर्स
इन द बेंजीन आप ऐसा ब्यूटेन, पेंटेन और क्या था प्रोपेन उसमें नहीं कर सकते. ओनली इन द केस ऑफ द बेंजीन इट इज. क्लियर? यस मैम. ओके. अब एक चीज और बताऊं या यहीं पे स्टॉप करूं? छोटा सा पार्ट बताऊंगी मैं. बता दो. बता दूं? बता दो मैम. उसके बाद एक चीज और आती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द होमोलोगस सीरीज. पहले मैं तुम्हें एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ. होमोलोगस सीरीज का मतलब है हम सब अपनी फैमिलीज में रहते हैं. तुम्हारे जो लाइक जो ग्रैंड फादर या उनके भी जो ग्रैंड फादर थे, से सपोज इफ यू आर मेहता, तो वो मेहता लगाते थे, इजंट इट? फिर आपके ग्रैंडफादर आए, उन्होंने भी अपने नाम के आगे मेहता लगाया. फादर आए, उन्होंने भी लगाया. यू ऑल्सो पुटिंग, एंड देन योर नेक्स्ट जनरेशन आर ऑल्सो गोइंग टू पुट द सेम सरनेम. Same in the case of the homologous series, we say that all the members of this particular series have the same general formula. They have the same general formula. Same general formula का मतलब ये हो गया that if you are talking about the alkanes, तो सभी alkanes का general formula same होगा. Like in the previous class मैंने आपको बोला था कि ये वाला फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 लगा के आप जरा डेराइव करना C10 तक, तो सब में एक ही फॉर्मूला फिट हो रहा था इन द केस ऑफ द एल्केन्स. डिड यू ट्राई दैट बेटा? यस मैम. यस. यस मैम. Yes. और उन सब के सफिक्स भी आपने सेम लिखे होंगे, दैट इज योर एन. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what is going to happen when we have the same this homologous series? Say suppose मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हमारे पास एक ग्रुप होता है OH. दिस OH ग्रुप इज अ, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अल्कोहल ग्रुप. ओके. अब इसका जो एग्जाम में जैसे आप लोग पूछते हो ना कि मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, अब इफ इन द एग्जाम क्वेश्चन कम्स that write down the homologous series for the alcohol, तो ये क्वेश्चन कभी भी सिंगल नहीं आता है, पहले आता है what do you mean by homologous series. तो homologous series में आप क्या बोलोगे? their chemical properties are going to be same and physical properties are going to be different. अब केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होगी? बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली. सेम फैमिली का मतलब सेम ग्रुप है उनका, सेम फंक्शनल ग्रुप. फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि जो कार्बन एटम्स है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? Ma'am, we can write in definition that they have same general formula. बेटा केमिकल एंड आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन केमिकल और फिजिकल इट इज मस्ट टू राइट. ओके. Okay, ma'am. Okay. अब से सपोज मैंने जैसे आपको अल्कोहल का बोला, तो लाइक लुक CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH. इसमें आप कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? मैं इसको Yes, ma'am. Carbon atoms बदल रहे हैं. Ma'am, carbon और hydrogen atoms. Ma'am, carbon and hydrogen atoms are changing. अब मैं एक डिफरेंस आपको दिखाती हूँ, वो तो आपने सही डिफरेंस लिया. आप कोई डिफरेंस आप पकड़ पा रहे हो यहाँ पे? Yes, ma'am. CH2 मैम हर उसमें बढ़ता जा रहा है. वेरी Yes, गुड. ma'am. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द होमोलोगस सीरीज. आपको समझ में आया? नाउ यू हैव गॉट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होमोलोगस सीरीज. मेन डिफरेंस. Yes, ma'am. Yes. Okay.
So now your work is what? That up to here you people require to read from your LR also and from NCERT also. And then we will continue in the next class. Whatever your doubts, we will